Hello everybody. Today I am going to teach you some syllabus of NCERT CPSC Class 4 Environmental Studies. Listen carefully all the slides so that you can understand it very well without any doubts. Today I have taken activity-based questions. Listen it carefully and find out answer. Later on I will discuss with you. See this picture. What do you see? There are some girls playing. Okay, these are some bricks and one girl is just walking on the bricks. Okay, let's understand what they are doing. Here, the first point is collect some bricks, lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? देखो, अगर आप कुछ ब्रिक्स ग्राउंड पर रखते हो तो क्या उन पर चलना आसान होगा? आपको क्या लगता है कि आप आसानी से चल पाएंगे? Second point, make a small bridge by tying 4 or 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. Now, walk on your bridge. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this a few times, you will start finding it easy. इसी प्रकार से अगर आप एक बैम्बू का ब्रिज बनाएं और उसमें चलने की कोशिश करें तो आपको क्या लगता है कि आप उसमें आसानी से चल पाएंगे? हाँ, शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ये आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, डू यू थिंक it would be easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers? Why? इस ब्रिज पर चलना क्या आसान होगा? barefoot मतलब कि आप अपने पैरों में शूज या स्लीपर नहीं पहनेंगे, तो क्या इस पर चलना आसान होगा? और क्यों आसान होगा? बिना शूज या बिना स्लीपर के इस ब्रिज पर चलना क्यों आसान होगा? इसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है? तो आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ आंसर मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. सॉल्यूशन, यस इट वाज इजी. हाँ, ये आसान था. एट फर्स्ट I found it difficult to walk. Later it became easy. पहले तो मुझे इसमें वॉक करने में डिफिकल्ट हुआ, कठिन लगा, लेकिन बाद में ये आसान हो गया. It is easier to walk on this bridge in bare feet. It has more grip with toes. शूज या स्लीपर पहनने से ज़्यादा आसान बिना स्लीपर या बिना शूज के वॉक करना इस तरह के ब्रिज में आसान होता है. क्यों? क्योंकि हमें फिंगर्स, जो पैरों की अंगुलियां होती हैं जिनको कि हम टोज बोलते हैं, उससे हमें ब्रिज पर चलने के लिए ग्रिप मिलता है, मतलब एक पकड़ मजबूत हो जाती है और हम आसानी से चल पाते हैं. तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आपने दो चीजें सीखी कि पहले तो कोई भी काम कठिन होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद वही काम आसान हो जाता है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि अगर कोई काम कठिन है तो उसको कैसे आसान बनाया जा सकता है, इसके बारे में सोचने की जरूरत पड़ती है. तो अगर कोई काम कठिन है तो अगर हम अपना दिमाग लगाएं और सोचें तो वो काम आसान हो सकता है.
इस एक्टिविटी के माध्यम से ये बात आपने सीख ली। चलिए हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और उससे आप क्या सीखते हैं आप मुझे बताइए। Observe picture 1 and 2. In the pictures, children are pulling the buckets from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? See the picture 1. What this boy is doing? He is just drawing the water from the well. But there is no pulley. He is using his hand only. Okay. Second picture. Here is the same boy. He is drawing the water from the well, but this time he is using this pulley. Okay. Look around you. Where all do you see the use of pulleys? List them. With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. See, this girl is using a pulley to lift a brick. Solution. In picture 1, a boy is trying to pull the bucket from the well without using a pulley, whereas in picture 2, a boy is pulling the bucket full of water using a pulley. Definitely using a pulley to lift things is easier. Lifting heavy loads, hoisting flags, etc. Do it yourself. Students, इसे आप खुद भी करके देख सकते हो या अनुभव कर सकते हो या इसके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन प्रयोग करने के पहले इसमें आपको अपने माता पिता या अपने बड़े भाई या बहनों की आवश्यकता होगी, जिससे कि आप किसी मुसीबत में ना पड़े। देखिए, ये बच्चा बिना पुली की सहायता से कुएं से पानी खींच रहा है, तो इस स्थिति में इसको ज़्यादा बल प्रयोग करना पड़ेगा पानी को खींचने में। लेकिन दूसरे पिक्चर में ये बालक कुएं से पानी खींच रहा है, लेकिन इस समय इसने इस पुली का इस्तेमाल किया है। पुली जो है इसको कम बल लगाकर भी पानी को खींचने में मदद करता है, क्योंकि ये पुली आसानी से बकेट का पानी खींचने में मदद करती है, क्योंकि ये राउंड शेप में है और इस पर रस्सी आसानी से चल सकती है। ये लड़की पुली की सहायता से इस ब्रिक को ऊपर उठा रही है, जिससे इसका काम आसान हो गया है। कम बल लगाकर भी यह ब्रिक को आसानी से उठा सकती है। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आपने सीखा कि पुली, इस तरह की पुली जो है हमें काम करने में आसानी प्रदान करती है और हम कम बल का प्रयोग किए भी काम कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में अगर आपको कुछ डाउट है तो YouTube चैनल के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके डाउट्स दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आज मैंने जो भी पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए हैं, तो उन सभी पॉइंट्स को आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए और उसमें लिखिए, जिससे कि आपको ये सभी पॉइंट्स याद हो जाएंगे और ये आपके एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।